children, today we are going to start with chapter 6, that is the age of reorganization. So in this chapter, I will tell you about rise of Sungas, Satvahans dynasty, and then kingdom and life. मतलब साउथ में लोगों का क्या क्या kingdoms थे, कैसी वो life जीते थे, and Sangam age. Then we had Tamilakam, Cholas, and then your Pandyas, and invasion from the northwest. देखो north के west की तरफ से क्या होता है, invasion हो रहा था, और story क्या थी, वो Silk Route थी, right? So let's start with the chapter now. As you know the much about Ashoka's successor, the Mauryan Empire was the last Mauryan Empire. So the last Mauryan emperor was, कौन थे last Mauryan emperor हमारे? That is Brihadra. He was assassinated around 185 BC by his general Pushyamitra Sunga, and what has led up in a breakup of an empire. इस situation में क्या होता है? We saw the emergence of new kingdom. हम नए नए kingdoms का emergence देखते हैं, and these were earlier tributaries of kingdoms under the overlordship of the Mauryan Empire. यहाँ पे क्या था? एब्सेंस था स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर का, राइट? और उस एब्सेंस की वजह से नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था वो वीक होता जा रहा था और एक्सपोजिंग इट टू द इन्वेजन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. सो हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस पीरियड एज एग्जिस्टिंग रीजन फॉर बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यू किंगडम्स. So what happened? The new kingdoms fought between each other for their territorial control by peaceful methods and matrimonial alliance between neighboring kingdoms or the use of force in warfare. और क्या करते हैं? matrimonial alliance कर रहे थे और अपना force का use कर रहे थे. And it's noteworthy that there was constant struggle for control over areas along the borders, as controlling borders was an important aspect of keeping the kingdom safe from attack. So with these political events, what happened? इन political events की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं आर्ट में, आर्किटेक्चर में और लिटरेचर और इनरिचिंग कल्चरल एक्सचेंज में, राइट? फिर राइज ऑफ सुंगास का राइज होता है, राइट? मीन्स in 2nd century BC, जो पुष्यमित्र सुंगा थे, he defeated the last Mauryan ruler and took over the throne. और throne ले लेते हैं, and he was soon attacked by the Greek rulers. और कौन अटैक करता है इनको? Greek rulers and from west, but they were able to defeat them. और उन्होंने उन्हें defeat करा. So this led him to perform the Ashwamedh Yajna. और उन्होंने क्या करा? अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करा, मीन्स द रूल ऑफ 36 ईयर. ही सक्सीडेड बाय हिज सन, इनके सन थे जिनका नाम था अग्निमित्र, उनसे वो सक्सीड करते हैं इन्हें. एंड देयर वर 10 सुंगा रूलर्स. कितने थे? 10 थे. The period witnessed the revival of practice that had led to a great extent during the earlier Mauryan period. Art, education, philosophy and other forms of learning. क्या क्या? एक तो आर्ट और दूसरी लिटरेचर और कुछ अदर फॉर्म्स जो थे लर्निंग के, दे फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड. यहाँ पे आपको स्मॉल टेराकोटा इमेजेस देखने को मिलती हैं, लेयर स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स जैसे आपका स्तूपा एट बरोहत हो गया, ग्रेट स्तूपा एट सांची हो गया, राइट? एंड द सुंगा रूलर हैड टू एस्टैब्लिश द ट्रेडिशन ऑफ रॉयल स्पॉन्सरशिप ऑफ लर्निंग इन आर्ट. और जो स्क्रिप्ट थी it was used by the empire was a variant of a Brahmini script and it was used to write Sanskrit. और इसके आपसे हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं? संस्कृत लिख सकते हैं. So Sungas were important patronors of the culture at the time when some of the most developers in Hindu thoughts were taking place. We have Satavahanas. According to Purans, अगर हम पुराण के हिसाब से बात करें, जो सतवाहन्स थे उनको हम क्या कहते थे? अंधरास. इन्होंने कितने साल के लिए रूल करा? 300 इयर्स के लिए. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सतवाहन रूलर थे वो कौन थे? दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी, राइट? सो इनकी जो मदर है गौतमी बलसारी, एंड द सतवाहन किंग वर कॉल्ड लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणी पथ. और इनको क्या कहा जाता था? लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणी पथ. And the route leading to the south, or जो entire South India था, it was Dakshini. Next is women enjoyed prominent position in the Satavahan society. Intelligent and educated women like Nagnika and Gautami Balsari, they played an important role in administration. Wealthy जो women थी, they held property in their own right, मतलब अपनी ही property, अपने right ले लिए property पे. Then we have Amravati sculpture that depict women offering worship with men.
भाई वुमेन क्या कर रही है, पूजा कर रही है मेन के साथ. एंड देन टेकिंग पार्ट इन असेंबलीज एंड एंटरटेनिंग गेस्ट, भाई असेंबलीज में पार्ट ले रही है, गेस्ट को एंटरटेन कर रही है. दे इवन कार्व्ड एज अ पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस डिस्कशन, कोई अगर रिलीजियस डिस्कशन हो रहा है उसमें भी पार्ट लेती है. मैन एंड वुमेन वोर मेनी ऑर्नामेंट्स, और अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं. जो कैपिटल थी सतवाहंस की वो क्या थी, पैठान और प्रतिष्ठान, which is in Maharashtra, and they traded with the Roman Empire. Some of their coins bear the figure of ship sailing on the ocean. और जो सतवाहंस थे, they were responsible for what? Construction of many rock temples and monastery in Maharashtra. Buddhist stupas built at Nagarjunkonda and Amravati in Andhra Pradesh. और सबसे important और famous Buddhist जो आपका स्कल्पचर है वो है आपकी अमरावती. Now Chedi dynasty. Chedi dynasty rose to prominence in Kalinga, present day Odisha, towards the end of 1st century BC. And यहाँ पे क्या होता है, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, राइट. सो द छेदी डायनेस्टी इज नोन फॉर द किंग खेरेवाल. खेरेवाल किससे जानी जाती है, ये रीजन है जहाँ विच डॉक्यूमेंटेड इन द व्हाट हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. कहाँ पे देखने को मिलता है ये आपको, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है. He is known for his military campaign, a devoted follower of Jainism. He is sometimes called monk. इसको monk या king, जिसे हम भिक्षु राजा कहते हैं. यहाँ पे जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, उदयगिरी नियर हिल्स नियर भुवनेश्वर. ये आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है इनटू खेरेवाल्स रीजन, राइट. सो खंडागिरी एंड उदयगिरी केव्स, ये आपकी दो केव्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती है. ये रॉक कट मोनेस्ट्रीज है दैट इज सर्व्ड एज अ एडॉप्ट्स फॉर जैन मॉन्क्स. और ये फॉलोवर है किसके, जैनिज्म के. ये जो केव्स है यहाँ पे फीचर्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको पैनल्स देखने को मिलेंगे, स्टैचूज, स्पेशियस रूम्स देखने को मिलेंगे. एंड सबसे जो शाइनिंग एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे आपको स्किल क्राफ्ट्समैन देखने को मिलते हैं. किंगडम्स एंड लाइफ, इफ वी टॉक अबाउट सदर्न रीजन की, जो पीरियड था बिटवीन 2 to 3 सेंचुरी बीसीई, ये जो रीजन था यहाँ पे राइज हो रहा था किसका, प्रोमिनेंस ऑफ 3 पावरफुल किंगडम्स. कौन कौन, चेरास, चोलास एंड पांड्यास, राइट. तो हम बात करेंगे सदर्न रीजन में जो 2nd और 3rd सेंचुरी वाली एरिया है, वहां पे आपको 3 किंगडम्स का या 3 पावरफुल किंगडम्स का राइज देखने को मिलता है, जिनका नाम है चेरास, चोलास एंड पांड्यास, which often competed with each other for the control. भाई एक दूसरे से उन्होंने लड़ाई करी साउथ पे कंट्रोल करने के लिए, and for contributing to the region growth in trade and culture. क्या कर सके, ट्रेड. फिर है आपकी संगम एज. देन वी हैव द संगम एज, जो तमिल रीजन था साउथ इंडिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, तमिलकम. ये कहाँ लाई करता है, इट्स लाइज साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर के साउथ में लाई करता है. और यहाँ पे 3 पावरफुल डायनेस्टीज थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, राइट. कौन कौन सी हो गई, आपकी चोलास हो गई, चेरास हो गई और पांड्यास हो गई. एंड दीज 3 किंगडम्स हैव पावरफुल पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिलेशन विद वन अदर. इनके क्या है, एक दूसरे के साथ कुछ पावरफुल पॉलिटिकल और कल्चरल दोनों रिलेशन है. और सतवाहंस दे वर ऑल्सो वेरी पावरफुल इन द सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र. इन एरियाज में भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने मोर देन 450 ईयर्स रूल करा, राइट. और इसी पीरियड को हम संगम एज कहते हैं. देन वी हैव तमिलकम, व्हेन द मौर्यंस एंड कुशान्स वर रूलिंग इन नॉर्थ इंडिया. जब मौर्यंस और कुशान दोनों रूल कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया वाज रूल्ड बाय मेनी रॉयल्स, राइट. मैंने क्या कहा, जब मौर्यन और जो कुशान्स थे वो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, तो साउथ इंडिया को कौन रूल कर रहा था, कुछ रॉयल डायनेस्टी, जैसे आपकी सतवाहन हो गए. ये आपके कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र रीजन को. वहीं जो आपके चेरास, चोलास और पांड्यास थे, दे वर रूल्ड द रीजन ऑफ साउथ ऑफ सतवा. जो सतवाहाना की जो टेरिटरी थी तो उनका साउथ वाला रीजन था, वो उसको कर रहे थे. दिस रीजन वॉज कॉल्ड तमिलकम बिकॉज जो लैंग्वेज स्पोकन, जो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती थी वो तमिल थी, राइट. रूलर्स ऑफ तमिलकम, वी हैव चेरास, चोलास, पांड्यास. इनको हम मुवेंदर भी कहते थे. एंड द संगम लिटरेचर मेंशंस मुवेंदर, लाइक वेंदर मीन्स किंग और रूलर. सो मुवेंदर मीन्स 3 important rulers of तमिलकम, राइट, हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया. और ये पावरफुल हुए साउथ इंडिया में अराउंड व्हाट 2800 ईयर अगो.
सो चोलास की बात करें, द चोला किंगडम वाज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड था? बिटवीन पेनार एंड वेलोर रिवर एंड वाज जो पॉपुलरली इसको क्या कहा जाता था? चोला मंडलम, राइट। जो चीफ था वो सेंट्रल आपका पॉलिटिकल पावर था, वो कौन था? आपका उरियूर, एंड ही इट वाज फेमस फॉर इट्स कॉटन ट्रेड। सेकेंड सेंचुरी बीसी ही ये एक इंपॉर्टेंट चोला रूलर थे जिनका नेम था इलारा। इन्होंने क्या करा? श्रीलंका को कॉन्कर करा और वहां कितने साल के लिए रूल करा? 50 इयर्स। फिर दूसरे अनदर इंपॉर्टेंट चोला रूलर आते हैं जिनका नाम था करिकला। कौन थे दूसरे? दैट इज करिकला इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर इम्बैकमेंट, और कहाँ बनाया? अब द कावेरी रिवर, राइट। और इन्होंने हेल्प करा 12,000 स्लेव्स को टू ब्रॉट फ्रॉम श्रीलंका, एंड ही फाउंडेड अ न्यू कैपिटल, एक नई कैपिटल फाइंड करी चोला की एट पुहार, विच इज आइडेंटिकल एट कावेरी पट्टनम, एंड इट वाज अ ग्रेट सेंटर, और ये एक ग्रेट सेंटर था ट्रेड एंड कॉमर्स का। और चोला दे मेंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मलयाला आर्चिपोलियो, एंड अंडर करिकला सक्सेसर चोला पावर डिक्लाइन वेरी रैपिडली, और जो चोला की पावर है वो रैपिडली डिक्लाइन हो गई, राइट। फिर हम बात करते हैं चेरास की। चेरास वर ऑल्सो नोन एज, इनको हम केरला पुतस्वी कहते हैं। ये अब प्रेजेंट डे जो केरला था वहां पे रूल कर रहे थे, और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु, जो उनकी कैपिटल थी चोलास की, चेरास की, वो क्या थी? वज्जी। ठीक है, आपको याद रखनी है। चेरास Sangutuvan was most important distinguished among the Chera rulers. He fought against the Cholas and Pandya. इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स बनाई और इन्होंने जो रोमन फ्लीट थी उसको कैप्चर कर लिया। चेरा रूलर्स इनकरेज ट्रेड एंड हैड ट्रेड लिंक विद रोम एंड इजिप्ट, और यहाँ पे इनके साथ क्या थे? ट्रेड लिंक थे रोम और इजिप्ट के साथ, राइट। लाइफ ऑफ द पीपल, दीज किंगडम्स वर रूल्ड बाय द चीफ्स जो लोग थे उन्होंने इनको रूल करा। दे एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क, ये सब एक एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज थे, बट दे डू नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे, बट इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव व्हाट? गिफ्ट्स। या तो कोई गिफ्ट डिमांड करते थे या रिसीव गिफ्ट्स करते थे। सो द पीपल लिव्ड इन टाउन्स एंड कोस्टल एरियाज एंड वर एंगेज्ड इन ट्रेड। कहाँ रहते थे? टाउन्स में, कोस्टल एरियाज में, ट्रेड में एंगेज थे, एंड द पीपल ऑफ दीज किंगडम्स वर फॉन्ड ऑफ अम्यूजमेंट्स। आफ्टर द वर्क दे एंजॉय म्यूजिक, भाई अपने काम के बाद म्यूजिक एंजॉय करते थे, डांस करते थे, और जो पोट्री थी उनको रिसाइट करते थे। एंड सम पीपल वर इंडल्ज इन गैम्बलिंग, कुछ लोग गैम्बलिंग करते थे, राइट। Musical instrument of different types like drum, flute, pipes, etc. was used. So there were also general assembly, जिसको हम सभा कहते हैं, which is comprised of chief. It discuss matter of, कौन से मैटर डिस्कस करें? वॉर, पीस, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, राइट। उसके बाद आता है आपके पांड्यास, राइट। इन्होंने जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है आपका मदुराई और तिरुनेवली वाला एंड सम पार्ट ऑफ Trichipalli and Travancore region, the capital was Madurai, और Megasthenes gives some information, और Megasthenes information देते हैं पांड्यास की in the book Indica, इनकी जो बुक थी Megasthenes की Indica, उसके बारे में ये पांड्यास की इंफॉर्मेशन देते हैं। पांड्या किंगडम वाज फाउंडेड बाय अ वुमन हु मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करी। देन द पांड्यास कैरिड ऑन ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज थ्रू पोर्ट्स एंड कोरकल। कौन से पोर्ट्स थे? आपका कॉरकल और कयाल का। Pliny tells us that it was a rich and flourishing country, and Megasthenes says that Pandyan kingdom was known for its, किसके लिए जाना जाता है? Megasthenes क्या कहते हैं? पांड्यास का जो किंगडम है वो किसके लिए जाना जाता है? पर्ल्स, एंड एक्सपोर्टेड देम टू द रोमन्स, और वो किसको एक्सपोर्ट करते थे? उस पर्ल्स को? रोमन को। So Pandyan kings respected Brahmins and performed Vedic sacrifice. भाई एक तो ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करते थे और क्या परफॉर्म करते थे? वैदिक सेक्रीफाइस। एंड ही वाज अ पेट्रोन ऑफ लिटरेचर एंड ऑर्गेनाइज्ड लिटरेरी असेंबली, और इन्होंने एक लिटरेरी असेंबली भी ऑर्गेनाइज करी थी। वो कहाँ करी थी? मदुराई। नेक्स्ट इज इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन हो रहा था। कौन आ रहे थे? सबसे पहले इंडो ग्रीक आते। सो Many foreigners invaded North India during this time. Among the first invader, उसमें से जो पहला इन्वेडर थे वो ग्रीक थे, who ruled Bactria, मतलब जो नॉर्थ अफगानिस्तान वाला रीजन है। And the Greek who settled in India were known as Indo-Greek, और जो सेटल हो गए उनको इंडो ग्रीक कहते हैं। और सबसे फेमस जो इंडो ग्रीक रूलर थे वो आपके मेंडर और मिलिंडा, राइट। ये आपको याद रखना है। Indo-Greek rule is very important in the history. So Indo-Greek was the first ruler of India to issue coin bearing यहाँ पे portraits से kings के उन coin पे।
एंड दे ऑल्सो मिंटेड अर्लीस्ट, जो सबसे अर्लीस्ट गोल्ड कॉइन था वो भी मिंट करा. एंड इनका जो न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट था दैट केम टू बी नोन एज गंधारास. शाकाज आते हैं आफ्टर इंडो ग्रीक. कौन आते हैं? शाकाज इन्वेडेड इंडिया एंड 5 ब्रांचेस ऑफ द शाकाज रूल ओवर टू द डिफरेंट पार्ट्स. 5 ब्रांचेस से दोनों अलग अलग पार्ट्स में रूल करा. एंड द बेस्ट नोन शाका रूलर का नाम क्या था? रुद्र दमन. Right, he repaired the old Sudarshan Lake in Kathiawar, Gujarat, and the large irrigation lake was built during the rule of Mauryaas. Rudra Raman was also a great lover of Sanskrit. ये great lover भी थे संस्कृत की. Then we have Parthians. अगर हम Parthians की बात करें, the Shakas were followed by Parthians, and the Parthians came to India. कहाँ से आए थे Parthians? ईरान से आए थे. Right, and they मतलब इन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था उसको, उस रीजन को रूल करा. सबसे इंपॉर्टेंट पार्थियन रूलर्स कौन थे आपके? गोंडोफेरेंस. इट इज सेड दैट ड्यूरिंग दिस रीजन सेंट थॉमस, वन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ जीसस क्राइस्ट, विजिटेड इंडिया. ठीक है, तो फिर आते हैं कुशांस. मैंने आपको बताया सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं, फिर शाखाज आते हैं, फिर पार्थियंस आते हैं और फिर कुशांस आते हैं. राइट, पार्थियंस ने फॉलो करा था कुशांस को, हु केम टू इंडिया थ्रू अफगानिस्तान. अफगानिस्तान से आए थे. राइट, ग्रेजुअली दे एस्टैब्लिश अ माइटी एम्पायर एंड द एम्पायर वाज स्ट्रेच एज बिहार इन द ईस्ट. द मेन कैपिटल ऑफ कुशांस वाज पुरुषपुरा और पेशावर. मथुरा उत्तर प्रदेश being the secondary capital. The important Kushan rulers was कौन से थे आपके? Cutfish first, Kadphishes second, your Kanishk, and in 17C Kanishk started a new era called Shaka era, which was used by the government of India. And Kanishk patronized Buddhist monk. इन्होंने क्या करा था? Buddhist monk को patronize करा था in कश्मीर, जिसमें ये क्या करा इन्होंने? टीचिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म डिस्कस करी. Kanishk encouraged art and literature. We have Ashwaghosh, famous Sanskrit scholar, live in the court of Kanishk. Ashwaghosh ने क्या लिखा था? बुद्ध चरिता, मतलब biography of Buddha. And Sordhanandan, he attended the Buddhist council organized by Kanishk. We have Vashumitra Charkha and Nagarjun were other scholars in the court of Kanishk. We have Charkha wrote a book called Charkha Samhita that described various plants and herbs used in मेडिसिन. जो डिफरेंट प्लांट्स और हर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं मेडिसिन में, उसको बताते हैं. द कुशान पैट्रोनाइज द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट. दिस स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ intermingling of Indian foreign ideas. Gandhar art in Buddhist is the theme, but Greco-Roman in style. Gradually what happened? जो Gandhar style था, it spread to Mathura, which was already a great center of art. Many Buddhist sculptures have been discovered in Mathura. Many of these sculptures are made up of red stone, जो आपको मिलता है इस रीजन में. राइट, इसको हम हेडलेस स्टैचू भी कहते हैं. किसका? कनिष्क का हेडलेस स्टैचू है. अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ सिल्क रूट. सो इंडिया केम इनटू कांटेक्ट विद डिफरेंट लैंड्स. किसके थ्रू आया था? सिल्क रूट के. सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था. व्हाई? बिकॉज जो सिल्क वाज द मेन आइटम ट्रेडेड थ्रू दिस रूट, तो इसलिए इसका नाम हमने सिल्क रूट रख दिया. दिस रूट वाज पॉपुलर अमंग द traders and the Chinese were first to make silk and followed this trade route to carry. इन्होंने क्या करा? सिल्क रूट का यूज करके सिल्क को डिफरेंट जगह पे ट्रेड करा. एंड देयर वर सेवरल ब्रांचेस ऑफ दिस रूट. मेन ब्रांच जो थी वो आपकी स्टार्ट होती है चाइना आफ्टर रनिंग अक्रॉस सेंट्रल एशिया एंड इट्स एंडेड टू वेस्ट एशिया प्रोविंसेस. और जो वेस्ट एशिया वाला प्रोविंस है वहां पे एंड हुआ टू द रोमन एम्पायर. And the Indian traders and all followed this route to export pearl, textile, ivory, silk and precious stone. In return उनको क्या मिलता था? Glass, copper, tin and gold. Many rulers tried to have control over Silk Route. They protected the traders from attack by pirates and in return the trader gave them the part of their profit. वो क्या करते थे? थोड़ा जो उनका part of profit था वो उनको देते थे and it was profitable. दोनों पार्टीज के लिए क्या हो जाता था? वो प्रॉफिटेबल हो जाता. Right? So this was all about the importance of Silk Route that I have told you. Hope you understood the entire chapter. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.